اللہ تعالیٰ نے 5 قسموں کو یاد فرمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کا جو واقعہ ہے اس کو ذکر فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ دیکھیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بعث بعد موت کا انکار کیا، حضور کی باتوں کو جھٹلایا، منع کیا، شک کیا، تو اس وجہ سے حضور کو ناگوار گزرا، حضور کو دشوار گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی تسلی کے لیے، کس کے لیے؟ حضور کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کے واقعات کو حضور کے سامنے رکھا اور تسلی دیا کہ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ ان قوم کا انکار کر دینا، قوم کا بات نہ ماننا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ کیا نام ہے؟ یہ پہلے کے انبیاء کرام کے ساتھ بھی کفاروں نے اسی طرح کا سلوک کیا کہ وہ کوئی بات بتاتے تو انکار کر دیتے۔ یہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کیا حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر آئی؟ اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے حضرت، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے حضور کی تسکین کے لیے، حضور کی تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا، مگر فرعون کا ذکر کیوں کیا؟ قرآن شریف میں یہاں بھی فرعون کا ذکر ہے، اذهب الى فرعون، اور بھی کئی جگہ قرآن شریف میں فرعون کا ذکر ہے، شداد کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، حامان کا ذکر ہے۔ قرآن شریف میں اور بھی کفاروں اور کیا نام ہے اس دور کے بادشاہوں کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں لایا؟ ان کا ذکر کہ وہ تو کفار ہے، وہ تو کفر پر مرے، ان سے ہمارا کیا رشتہ، کیا تعلق؟ اس قرآن میں ان کا ذکر آیا کیوں؟ بات صحیح ہے کہ ان سے ہمارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا رشتہ ہے، مگر فرعون سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ رہی کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، مگر فرعون کا ذکر کیوں ہوا؟ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک کہانی سناتا ہوں، بچپن میں آپ لوگ سنے ہوں گے، آج پھر یاد دہانی کے طور پر سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک شیر تھا اور ایک لومڑی، ایک گدھا تھا۔ تینوں نے پلان بنایا کہ چلو جنگل میں کیا نام ہے شکار کرتے ہیں، اور جو شکار ہوگا اس کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تینوں گئے شکار کرنے کے لیے، شیر صاحب اور حضرت لومڑی اور حضرت گدھے صاحب، تینوں گئے شکار کرنے کے لیے۔ شکار کیے، ہرن کا شکار کیا اور بھی کئی جانور کیے۔ شیر نے گدھے سے کہا کہ چلو حصہ لگاؤ۔ گدھا کہا حضور یہ اتنا حصہ آپ کا، اتنا لومڑی کا، اتنا میرا۔ جیسے کہا اتنا آپ کا، اتنا لومڑی کا، اتنا میرا، شیر صاحب کو غصہ آ گیا۔ شیر صاحب نے ترنت اپنے پنجے سے جناب کو پھاڑ کے رکھ دیا، گدھے کو پھاڑ دیا اور کہا میرے رہتے ہوئے تو حصے دار بنے گا، تو اپنا حصہ بھی لیتا ہے، شیر کے بادشاہ کے رہتے ہوئے تو حصہ دار بنے گا۔ پھاڑ دیا، اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی ختم کر دیا شیر نے۔ اور لومڑی سے کہا، لومڑی تو چلاک ہوتی ہی ہے، لومڑی سے کہا چلو اب تم تقسیم کرو۔ لومڑی نے کہا کہ حضور یہ والا جانور اب صبح ناشتے میں کھائیے گا، یہ والا دوپہر میں کھائیے گا، یہ والا رات میں، یہ بچ جائے تو کل صبح کھائیے گا۔ لومڑی نے کہا، شیر خوش ہوا، کہا واہ بڑا اچھا تقسیم تو نے کیا، اتنا گجب کا تقسیم کرنا تو کہاں سے سیکھا؟ تو حضور گدھے کے حال سے سیکھا۔ کہاں سے سیکھا؟ گدھے کے حال کو جو ابھی ہم نے دیکھا اسی کے حال سے میں نے یہ تقسیم سیکھا۔ اللہ اکبر! اللہ نے قرآن میں فرعون کا بھی ذکر کیا،
शद्दाद का भी जिक्र किया, नमरूद का भी जिक्र किया, और उनको किस तरीके से बर्बाद किया ये भी जिक्र किया, ताकि उम्मत मुस्तफा इनके हाल से सबक हासिल कर ले, ताकि उम्मत मुस्तफा इनके हाल को देखकर अपना हाल दुरुस्त कर ले। मगर वाह उम्मत मुस्तफा इनके हाल को देखकर अपना हाल दुरुस्त ही नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर। इसीलिए कुरान में इन बादशाहों का जिक्र हुआ और इनको किस तरह अल्लाह ने बर्बाद किया, किस तरह रब बन चुका था, और उसके बाद अल्लाह ताला ने किस तरीके से गर्क कर दिया फिरौन को, फिरौन को किस तरीके से गर्क कर दिया, और करने के बाद वालों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया, मेरे मुस्तफा की उम्मती ये जान जाए ताकि फिरौन जैसी हरकत ना करे, फिरौन जैसा तकब्बुर ना करे, फिरौन जैसा क्या नाम शरकत ना हो जाए। इसलिए अल्लाह ने कुरान में इन लोगों का जिक्र किया ताकि उम्मत मुस्तफा इबरत हासिल करे। मगर उम्मत मुस्तफा को कुरान से मतलब ही नहीं है। इस दौर के मुसलमानों का कुरान से मतलब नहीं है। वो न कुरान का इल्म सीखेंगे, न कुरान की जबान सीखेंगे, और न कुरान को पढ़ेंगे। जब न कुरान का इल्म सीखेंगे, न कुरान की जबान सीखेंगे, न कुरान को पढ़ेंगे, तो कुरान में क्या है कैसे जानेंगे? जब जानेंगे तब अमल करेंगे ना, जानेंगे ही नहीं। और जहां कुरान का दर्स होगा वो वहां भी नहीं हजरत बैठेंगे, तो बताइए कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे। यही वजह है कि आज देख लो मुसलमानों का हाल क्या है। आज देख लीजिए, आप देखिए फिरौन का जिक्र क्यों आया, समझ में आ गया कि नहीं आया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आया, ये भी बात समझ में आ गई। तो तसल्ली के तौर पर हुजूर से कहा, मेरे कलीम मूसा को अब देखिए ना, उनके साथ उनके कौम वालों ने कितनी ज्यादती की है, उनको कितना, उनकी बातों को कितना झुटलाया है, देखिए ना, तसल्ली हासिल कीजिए महबूब। अरे कहा कि हल आता का हदीस मूसा, क्या आपके पास मूसा की खबर नहीं आई? यानी आपके पास तो मूसा की खबर आई है, आप तो मूसा के वाकयात को, मूसा के साथ उनके कौम वालों ने क्या सुलूक किया, आप तो बेशक बखूबी जानते हैं। और मूसा के साथ क्या आया उसको जिक्र किया। मूसा को कहा अल्लाह ने, इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दिस तुवा, इज़ नादाहु, जब पुकारा अल्लाह ने, उसके रब ने, फिर मूसा के रब ने पुकारा। कहां पुकारा? बिल वादिल मुक़द्दस, एक पाक जंगल जो मुल्क शाम के करीब, क्या नाम है, तूर पहाड़ के पास, मुक़द्दस वादी जिसका नाम है, उस वादी, उस जंगल का नाम है तुआ। वहां पुकारा, उस मैदान में, तुआ के मैदान में पुकारा। अल्लाह ताला ने पुकारा। किसको पुकारा? किसको पूरा पुकारा? मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा। अका इज़हब इला फिरौन, आप फिरौन के पास जाइए। उस दौर का जो फिरौन था, कौन था? वलीद नामी शख्स था। कौन था बोलिए? वलीद नामी शख्स था। क्या कहा कि फिरौन के पास जाइए, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, बेशक वो सरकश हो गया है, हद से गुजर गया है, अल्लाह की नाफरमानी में हद से गुजर गया है, फसाद बर्पा करने में हद से गुजर गया है, कुफ्र में हद से गुजर गया है। उनके पास जाइए आप, ए फिरौन, ए मूसा, आप फिरौन के पास जाइए। इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया है, हद से गुजर गया है। और जाकर कहिए, क्या कहिए? फकुल हल लक इला अन तज़क्का, फकुल, और उनसे कहिए, हल लका इला अन तज़क्का, तुझे इस बात की चाहत है, तुझे इस बात की रग़बत है, तुझे इस बात की ख्वाहिश है कि इला अन तज़क्का, कि तू पाक कर दिया जाए, सुथरा कर दिया जाए, इस बात की रग़बत है तुझे? क्या कहा? बोलिए, कि तू पाक हो जाए, किस चीज से पाक हो जाए? इस बात की तरफ रग़बत है कि तू पाकीज़ा कर दिया जाए, सुथरा कर दिया जाए। इस बात की तरफ कि तू पाक हो जाए, सुथरा हो जाए, गुनाहों से पाक हो जाए, बुत परस्ती से पाक हो जाए, अल्लाह के नाफरमानी से पाक हो जाए। जो हद से गुजर गया है शरकती में, उन हद से गुजर जाने वाली चीजों से पाक हो जाए।
वअहदियका इला रब्बिका फतख्शा। यानी एक तो कहा कि तू इस बात की तरफ रगबत रखता है, इस बात की ख्वाहिश रखता है कि तुझे पाकीज़ा कर दिया जाए, तुझे पाक कर दिया जाए, तुझे सुथरा कर दिया जाए, और ये कि मैं तुझे तेरे रब की तरफ राह दिखाऊं। वअहदियका, और मैं तुझे राह दिखाऊं। किसकी तरफ राह दिखाऊं? इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ। तो खुद रब नहीं है माज़अल्लाह, तेरे रब की तरफ जो हकीकी रब है उसकी तरफ राह दिखाऊं, तुझे बताऊं रब की तारीफ, रब की तौसीफ और रब के कमालात और रब के क्या नाम है जात को तुझे बताऊं। फतख्शा, ताकि तू डरे। पता क्या चला? तख्शा कहां आया? पहले रब की मार्फत से आगाह कराने को कहा हजरत मूसा से कि पहले कहो कि मैं तुझे रब की तरफ राह दिखाऊं, पहले रब के बारे में बताऊं कि रब कौन है, रब की कुदरत क्या है, रब का पावर क्या है, रब की ताकत क्या है, रब का इल्म क्या है। जब तू रब को जान जाएगा फतख्शा, तो तू डरेगा। जब तू जानेगा ही नहीं रब को तो डरेगा कैसे? पता क्या चला? किसी चीज से डरने के लिए पहले उस चीज की मार्फत जरूरी है। किसी चीज से डरने के लिए क्या जरूरी है? उस चीज की मार्फत जरूरी है, उस चीज को पहचानना जरूरी है, उस चीज को जानना जरूरी है। उसके बाद उसके दिल में उस चीज के लिए खौफ आएगा, डर आएगा। फतख्शा लफ्ज को समझिए, वअहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और इस बात की तरफ, और क्या तुझे रग़बत है, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे राह दिखाऊं इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, मैं तुझे बताऊं रब के बारे में। फतख्शा, तो तू डरे। यानी जब तू जान जाएगा रब को, जान जाएगा रब की हकीकत को, जान जाएगा रब की ताकत को, कुदरत को, तो जाहिर सी बात है फिर तो तू डरेगा। तू जानता ही नहीं है, तू जानता ही नहीं है। जब जानता नहीं है तो डरेगा कैसे? फतख्शा, तो तू डरे। फ़अराहुल आयतल कुबरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए फिरौन के पास, फिरौन को बताया कि क्या तू चाहता है कि मैं तुझे सुथरा कर दूं इन क्या नाम बुतों की इबादत से? क्या तू चाहता है कि तू जो फसाद में मुब्तला है, सरकशी में मुब्तला है, उन चीजों से मैं तुझे पाक कर दूं, सुथरा कर दूं, और तुझे एक रब की तरफ राह दिखाऊं ताकि उस रब की तू इबादत करे जो वाकई हकीकत में इबादत के लायक है, जो इबादत के लायक है, उसकी तू इबादत करे, उसकी पूजा करे, उसकी परस्तिश करे, उसकी तरफ तुम दौड़े। क्या तू चाहता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो और अपने आप को बताया कि मैं नबी हूं, और नबी होने में मैं तुझे डर सुनाने आया हूं। और नबी होने के लिए अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या नाम मोजिजा दिखाया। क्या मोजिजा दिखाया? 2 मोजिजा दिखाया ताकि तू मान जाए, ताकि तू मान जाए कि मैं नबी हूं, मैं जो बात कह रहा हूं सच कह रहा हूं। 2 मोजिजा दिखाया। देखिए क्या है, फ़अराहुल आयतल कुबरा, तो दिखाया उसको, फ़अराहु आयतल कुबरा, बड़ी निशानी। कौन दिखाए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को दिखाया। बड़ी निशानी क्या है? तो बड़ी निशानी यह है, एक असा वाली निशानी, एक यदे बैजा वाली निशानी है। क्या? यदे बैजा। यदे बैजा क्या है? पिछले एतवार में थोड़ा मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा। यदे बैजा यह है कि अल्लाह ताला ने एक मुजज़ा दिया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ को अपने बगल में रखते और रख के निकालते तो वह हाथ चमक रहा होता, दूध की तरह और चांदी की तरह बिल्कुल चमकदार हो जाता। आई बात समझ? और फिर जब चाहते तो फिर सही हालत पर हो जाता। ये मुजज़ा अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, ये दिखाया। उसके बाद एक असा वाला मुजज़ा दिखाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन जाता
और जितने उनके फिरौन के मुकाबले में जादूगर आते सबको निगल जाता, सबको निगल जाता, और निकल भी गया। आई बात समझ। ये दो मोजिजा जब हजरत क्या नाम है मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दिखाया, तो फिरौन का देख लीजिए, फकज़्ज़बा वअसा सुम्मा अदबरा यसा। जब फिरौन को यह आसा दिखाया, फकज़्ज़बा, तो फिरौन ने झुटला दिया। फिरौन क्या क्या बोली है? झुटला दिया, और नाफरमा वासा, और नाफरमानी की। फिरौन झुटला दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को झुटला दिया और नाफरमानी की। और जो क्या नाम है बड़ी निशानी दिखाई थी उसको कह दिया ये जादू है। झुटला कर क्या कह दिया? ये जादू है। आई बसम में, और नाफरमानी की, वासा और नाफरमानी की। सुम्मा अदबरा यसा, फिर उसने क्या नाम है मुकाबले की कोशिश करते हुए पीठ को क्या नाम फेर दी, चला गया वहां से। और जाने के बाद क्या नाम है फहशरा फनादा, लोगों को जमा किया, अपने जादूगरों को, अपने जादूगरों को जमा किया। फकाल अना रब्बुकुमुल आला, फिर फिरौन ने जमा करने के बाद कहा है क्या नाम है मेरे कौम वाले सुनो, अना रब्बुकुमुल आला, तेरा बुलंदो बाला रब, तेरा आला रब कोई और नहीं, मैं हूं मैं। क्या कहा? अना रब्बुकुमुल आला, तेरा बुलंदो बाला रब क्या है, कौन है? मैं हूं। फअखज़हुल्लाहु नकालल आखिरती वल ऊला, फअखज़हुल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने उसको पकड़ लिया, दुनिया और आखिरत के अजाब में गिरफ्तार कर लिया। दुनिया में कैसे? दुनिया में गर्क करके, और आखिरत में जहन्नम में डाल के। आखिरत में जहन्नम में डालेगा, और दुनिया में जो गर्क किया आज तक तारीख शाहिद है, आज तक तारीख शाहिद है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब इनकार किया और झुटलाया, तो अल्लाह ताला ने फअखज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो अल्लाह ताला ने फिरौन को पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया, अजाब आखिरत और दुनिया के अजाब में। दुनिया में कैसे? तो दुनिया में आप लोग जानते हैं कि गर्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गर्क कर दिया गया। और आखिरत में कैसे? तो आखिरत में उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतल लिमन यख्शा, ये जो वाकया हजरत मूसा और फिरौन का बताया गया है, इसमें इबरत है, इसमें नसीहत है। आई बात सब में, इसमें इबरत है, नसीहत है। किसके लिए? लिमन यख्शा, डरने वालों के लिए, जिनके दिल में खुदा का खौफ होगा, जो अल्लाह से डरता होगा, उनके लिए इबरत है। और क्या इबरत है? इबरत यह है कि जब क्या नाम इस वाक्य को देखेगा, फिरौन के हश्र को देखेगा कि फिरौन के साथ अल्लाह ने क्या किया, फिरौन ने क्यों अखज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला फरमाया, क्योंकि तकब्बुर किया, अपने नबी की बात को झुटलाया, इनकार किया, अब पीठ दिखाकर भागा, और सरकस में क्या नाम है इन हद को गुजर गया। जब कोई इसको देख लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो इबरत हासिल करेगा कि तकब्बुर नहीं करना है। फिरौन ने तकब्बुर किया, उसका हश्र क्या हुआ? अपने नबी की बात को झुटलाना नहीं है, फिरौन ने झुटलाया, उसका हश्र क्या हुआ? पता क्या चला? डरने वालों के लिए इन वाकयात में इबरत है। क्या है इन वाकयात में? डरने वालों के लिए इबरत है, नसीहत है कि फिरौन जैसी हरकत ना करो। अल्लाह ताला ने कुरान में फिरौन का तज़किरा, उनके वाकयों का तज़किरा और भी कुफारों का तज़किरा सिर्फ इसलिए किया ताकि मेरे मुस्तफा के उम्मती पढ़ के जान जाए और ऐसी हरकत न करे जैसे इन लोगों ने की थी, ऐसी हरकत न करे, बल्कि इनकी हरकतों से, इनके हाल से, जैसे लोमड़ी ने गधे के हाल से फायदा उठाया, उसी तरीके से इनके हाल से मेरे मुस्तफा का उम्मती फायदा उठाए।
امت مصطفیٰ فائدہ اٹھائے، مگر آج امت مصطفیٰ کو فائدہ اٹھانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، درس قرآن بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے،